They only need watering every 2 weeks. कि इन्हें बस 2 हफ्तों में एक बार पानी देने की ज़रूरत होती है। Hello everyone, welcome back to the channel. So, today we are going to do a super exciting thing, and that is we are going to learn English with Ghosted. Yes, you heard it right. Ghosted. Hollywood की one of the most, I can say the best movie. Alright. So, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? See, I have taken a short clip घोस्टेड मूवी से, एंड उस छोटी सी क्लिप में जितने भी डायलॉग्स होंगे इंग्लिश में, मैं उनकी क्लियर एक्सप्लेनेशंस दूंगी प्लस ट्रांसलेशंस इन हिंदी। सो जिससे कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग नॉर्मली विद एनीवन, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक अच्छा इस वर्ड को क्या बोलना है, कैसे हम कन्वर्स कर सकते हैं, कैसे हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। सो in this video, see, yes, one more thing, if you think that this video is only for the beginners, अगर हमें इंग्लिश आती है then ये बिल्कुल हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, तो it's completely wrong. If you're a beginner, this video is going to help you a lot, and if you're not a beginner, आपको इंग्लिश पहले से भी आती है, still this video is going to help you a lot because you'll learn how to speak English fluently, smoothly, and most importantly with expressions. All right. So, if you want to learn English in the most fun and practical way, this video is for you. क्योंकि आज हम कोई भी बोरिंग ग्रामर रूल्स या फिर थ्योरीज नहीं करने जा रहे हैं। हम सिंपली एक क्लिप लेंगे, उसमें जितने भी डायलॉग्स होंगे मैं उनकी हिंदी ट्रांसलेशंस आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड उन डायलॉग्स को आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो। साउंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड गो स्ट्रेट इनटू द scene. Let's start. Alright. So now let's come to the first dialogue. What is there in this clip? Let's see it. What about a snake plant? Okay. Then he asks, what about the snake plant? What about the snake plant? मतलब वो पूछ रहा है कि snake plant के बारे में क्या ख्याल है? What about the snake plant? Snake plant के बारे में क्या ख्याल है? Let me just write this same thing in Hindi on the board as well, जिसके बाद हम speaking की practice कर पाए अच्छे से। So, what about the snake plant means snake plant के बारे में क्या ख्याल है? Okay, so what is the answer? What is the translation over here? What about the snake plant? What about the snake plant? Snake plant के बारे में क्या ख्याल है? ओके, स्नेक प्लांट के बारे में क्या ख्याल है? आगे देखते हैं। They only need watering every 2 weeks. Then he says they need watering every 2 weeks. They need watering every 2 weeks का मतलब कि इन्हें बस 2 हफ्ते में एक बार पानी देने की जरूरत होती है, कि इन्हें बस 2 हफ्तों में एक बार पानी देने की जरूरत होती है। What about snake plants? Snake plants के बारे में क्या ख्याल है? They only need watering 2 times a week, which means कि इन्हें बस 2 बार हफ्ते में पानी देने की जरूरत होती है। ठीक है, इन्हें हफ्ते में बस 2 बार पानी देने की जरूरत होती है। Alright, what is the answer? They need watering every 2 weeks. They need watering every 2 weeks. What does it mean? It means कि इन्हें बस हफ्ते में 2 बार पानी देने की जरूरत होती है। इन्हें बस हफ्ते में 2 बार पानी देने की जरूरत होती है। आगे देखते हैं। Sometimes I'm gone longer. Okay, then she says, sometimes I'm gone longer. कभी कभार मैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चली जाती हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी चली जाती हूँ। Sometimes I'm gone longer. Sometimes I'm gone longer, which means कि कभी कभी मैं लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए भी चली जाती हूँ। ओके, so
sometimes I'm gone longer means कभी कभी मैं ज्यादा लंबे समय के लिए भी चली जाती हूँ. Okay, what does it mean? Sometimes I'm gone longer. Sometimes I'm gone longer. It means कि कभी कभी मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए भी चली जाती हूँ. ठीक है, कभी कभी मैं ज़्यादा लंबे समय के लिए भी चली जाती हूँ. एंड अब हम देखते हैं आगे. Like a month or two. Then she says like a month or two, like a month or two, which means कि 1 या 2 महीने के लिए भी. ठीक है, 1 या 2 महीने के लिए भी. Like a month or two, 1 या 2 महीने के लिए भी. Okay, so the thing is like a month or two, it means 1 या 2 महीनों के लिए भी. ओके, like a month or two, which means 1 या 2 महीने के लिए भी. Let's say it again for the very last time. Like a month or two, 1 या 2 महीनों के लिए भी. ठीक है, 1 या 2 महीनों के लिए भी. आगे देखते हैं. Okay. Then he says okay, which means ठीक है. ठीक है, ठीक है. Then she says which means हाँ. Okay, ठीक है, हाँ. Sorry then. Why do you want to plant if you're never home? Then he asks, sorry, then why do you want to plant if you're never home? Sorry, but why do you want to plant if you're never home? He means कि माफ कीजिए, लेकिन अगर आप कभी घर ही नहीं होती हैं तो आपको एक पौधा क्यों चाहिए. ठीक है, माफ कीजिए, जब आप कभी घर पे ही नहीं होती हैं तो आपको पौधा क्यों चाहिए. ठीक है, so let me just write it. माफ कीजिए, लेकिन जब आप कभी घर ही नहीं होती हैं तो फिर आपको पौधा क्यों चाहिए. ठीक है, क्या सेंटेंस है हमारा. सॉरी, देन व्हाई डू यू वांट टू प्लांट इफ यू नेवर होम. ओके, विच मीन्स कि माफ कीजिए, लेकिन जब आप कभी घर ही नहीं होती हैं तो आपको पौधा क्यों चाहिए. ओके, सॉरी, देन व्हाई डू यू वांट टू प्लांट इफ यू नेवर होम, विच मीन्स माफ कीजिए, लेकिन जब आप कभी घर ही नहीं होती हैं तो फिर आपको पौधा क्यों चाहिए. ओके, आगे देखते हैं. I'm not never home. How about if you find me something a little less needy? Okay, then she says, I am not never home. How about you to find me something a little less needy? She means कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी घर पे नहीं होती, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा पौधा दिखाइए जिसकी कम देखभाल करने की ज़रूरत है. ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी घर पे नहीं होती, बस मैं एक ऐसा पौधा चाहती हूँ जिसको कम देखभाल की ज़रूरत हो. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि मैं
कभी घर पर नहीं होती. I just, how about you to find me something a little less needy? मैं बस देखभाल करनी पड़े. All right, so what was our sentence? Sentence was, I'm not never home. It's just how you find me something a little less needy. She means कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी घर पे नहीं होती, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा दिखाइए जिसकी कम देखभाल करनी पड़े. ठीक है, कोई ऐसा पौधा जिसकी कम देखभाल करनी पड़े. All right, okay, so we are done with this. आगे देखते हैं. All right, so now let's see what the next dialogue says. Find me something a little needy. Right. Why not just get a plastic? All right, then he says, why not just get a plastic plant? Why not just get a plastic plant means कि तो फिर तुम एक प्लास्टिक का पौधा क्यों नहीं ले लेती हो? तो फिर तुम एक प्लास्टिक का पौधा क्यों नहीं ले लेती हो? All right, what does he say? तो फिर तुम एक प्लास्टिक का पौधा क्यों नहीं लेती? Alright, so what is the sentence over here? Why not just get a plastic plants? तो फिर तुम एक प्लास्टिक का पौधा क्यों नहीं लेती? ओके, तो फिर तुम एक प्लास्टिक का पौधा क्यों नहीं लेती? Got it? आगे देखते हैं. That's sad. Well, not as. Okay, then she says, that's sad. That's sad. Okay, what does it mean कि ये दुखद है? Okay, that's sad कि ये sad है. Sad in Hindi means दुखद. Okay, so that's sad means ये दुखद है. Alright, that's sad. ये दुखद है. Alright, ये दुखद है. Okay, आगे देखते हैं. Well, not as sad as killing a plant. Then he says, well, not as sad as killing a plant. Well, not as sad as killing a plant. हाँ, पर इतना दुखद, पर एक पौधे को मार डालने जितना दुखद नहीं. हाँ, पर एक पौधे को मार डालने जितना दुखद नहीं. ओके, सो हाँ, पर एक पौधे को मार डालने जितना दुखद नहीं. ओके, व्हाट इज द सेंटेंस? वेल, नॉट एज सैड एज किलिंग अ प्लांट. हाँ, पर एक पौधे को मार डालने जितना दुखद नहीं. ओके, हाँ, पर एक पौधे को मार डालने जितना दुखद नहीं. ठीक है, आगे देखते हैं. And some of the new ones, they look totally real. No amount of neglect will kill them. Neglect? Okay, then he says, and some of the new ones, they look totally real and no amount of neglect can kill them. इसका मतलब वो कह रहे हैं कि और कुछ नई तरह के जो प्लास्टिक के प्लांट्स होते हैं, जो नई तरह के पौधे हैं, वो तो बिल्कुल असली की तरह लगते हैं और कोई भी तरह की लापरवाही उन्हें नहीं मार सकती और किसी भी तरह की लापरवाही उन्हें नहीं मार सकती. ठीक है, सो व्हाट वाज द सेंटेंस? एंड सम ऑफ द न्यू वंस दे लुक टोटली रियल एंड नो अमाउंट ऑफ नेग्लेक्ट कैन किल देम. कि और कुछ नए तरह के पौधे बिल्कुल असली लगते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही उन्हें नहीं मार सकती. ठीक है,
और कुछ नए तरह के पौधे बिल्कुल असली लगते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही उन्हें नहीं मार सकती. Okay, so what is the sentence over here? And some of the new ones, they look totally real and no amount of neglect can kill them. Okay, so क्या मतलब हुआ? और कुछ तरह के और कुछ नए तरह के पौधे बिल्कुल असली लगते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही उन्हें नहीं मार सकती है. ठीक है, आगे देखते हैं. Neglect. Then she says neglect. Neglect का मतलब होता है लापरवाही. ठीक है, सो उसको वो वर्ड नहीं अच्छा लगा जो उसने उसके लिए यूज करा, विच वॉज नेगलेक्ट. एंड नेगलेक्ट का मतलब होता है लापरवाही. ओके, You know what? I'm gonna get this one. देन शी सेज यू नो व्हाट, आई एम गोना गेट दिस वन ओनली. कि तुम्हें पता है क्या, मुझे यही वाला चाहिए अब. तुम्हें पता है क्या, मुझे यही चाहिए अब. ठीक है, यू नो व्हाट, आई एम गोना गेट दिस वन ओनली. यू नो व्हाट, आई एम गोना गेट दिस वन ओनली, व्हिच मींस कि तुम्हें पता है क्या, मुझे यही वाला चाहिए. तुम्हें पता है क्या, मुझे यही वाला चाहिए. So, you know what? I'm gonna get this one only. So, तुम्हें पता है क्या, मुझे यही चाहिए. Okay? So, you know what? I'm gonna get this one only. You know what? I'm gonna get this one only. तुम्हें पता है क्या, मुझे यही चाहिए. तुम्हें पता है क्या, मुझे यही चाहिए. Got it? आगे देखते हैं. Yep. Thank you. Then he says, yep, which is okay. And then she says, thank you, which means धन्यवाद. ठीक है, thank you, धन्यवाद. Sorry, I can't sell you this plant. I can't sell it to you in good conscience. Okay, then he says, this plant I can sell it to you in good conscience. Okay, conscience means आत्मा की शांति. ठीक है, कि मैं तुम्हें ये पौधा अपनी आत्मा की शांति के साथ नहीं बेच सकता. मैं तुम्हें ये पौधा अपनी आत्मा की शांति के साथ नहीं बेच सकता. ठीक है, so what does it mean? मैं तुम्हें ये पौधा अपनी आत्मा की शांति के साथ नहीं बेच सकता. ठीक है, मैं तुम्हें ये पौधा अपनी आत्मा की शांति के साथ नहीं बेच सकता. Got it? What was the sentence over here? This plant I can't sell it to you in good conscience, which means कि मैं तुम्हें ये पौधा अपनी आत्मा की शांति के साथ नहीं बेच सकता. मैं तुम्हें ये पौधा अपनी आत्मा की शांति के साथ नहीं बेच सकता. आगे देखते हैं. Good conscience. Good conscience, which means she's asking good conscience. आत्मा की शांति, आत्मा की शांति. She's asking that what does he mean by good conscience? आत्मा की शांति का यहाँ क्या लेना देना. Okay, What are you? The patron saint of plants? I just okay. Then she says, what are you, the patron saint of plants? What are you, the patron saint of plants? Which means कि
तुम हो क्या? पौधों के देवता हो, ठीक है? तुम हो क्या? पौधों के देवता हो। ओके, सो शी से व्हाट आर द पेट्रन सेंस ऑफ प्लांट्स? तुम हो क्या? पौधों के देवता हो, ठीक है? What are you? The patron sense of plants. What does it mean कि तुम क्या हो, ठीक है? तुम हो क्या? पौधों के देवता हो, ठीक है? उसकी ये बात सुन के कि मुझे आत्मा की शांति नहीं मिलेगी अगर मैं तुम्हें ये बेचता हूँ या जो भी उसने कहा, तो उस बेसिस पे शी इज सेइंग कि तुम क्या हो? पौधों के देवता हो, ठीक है? What are you? The patron sense of plants. Okay, आगे देखते हैं. Patron saint of plants. I just don't feel comfortable selling a plant to someone that can be so indifferent towards a living thing. Indifferent? Okay, then he says, I just don't feel comfortable selling a plant to someone that can be so indifferent towards a living thing. तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान को ये पौधा बेचते हुए जिसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, या जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो जीवित चीजों की के लिए. ओके, सो व्हाट डज ही सेइंग दैट I just don't feel comfortable selling a plant to someone that can be so indifferent towards a living thing, which means कि मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है किसी ऐसे इंसान को ये पौधा बेचते हुए जिसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, ठीक है? मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है किसी ऐसे इंसान को ये पौधा बेचते हुए जिसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो. Okay, so what does he say? I just don't feel comfortable selling a plant to someone that can be so indifferent towards a living thing, which means कि मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है किसी ऐसे इंसान को ये पौधा बेचते हुए जिसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, ठीक है? Indifferent means फर्क ही ना पड़ना. Different towards a living thing. Indifferent? Is this how you speak to all your customers? Because if you do, I'm shocked that you sell anything Always at a all. matter of fact. Okay, then she says, indifferent, is this how you speak to all of your customers? Because if you do, I am shocked that you sell anything. It means कि फर्क नहीं पड़ता कि ये तरीका है जिससे तुम अपने सभी कस्टमर से, सभी अपने ग्राहकों से बात करते हो, और अगर करते हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम चीज़ों को कैसे बेचते होगे, ठीक है? What does he say? Indifferent, is this how you speak to all of your customers? Because if you do, I'm shocked that you sell anything, ठीक है? So इसका मतलब कि फर्क नहीं पड़ता क्या इस तरीके से तुम अपने सभी ग्राहकों से बात करते हो? क्योंकि अगर करते हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपनी चीज़ों को बेचते भी कैसे होगे. So with this, we are done with this particular clip. I hope you enjoyed. I hope you understood all the dialogues in this clip. And in the next part, I will be bringing इसके आगे का जो भी सीन होगा. I hope you all are excited. And अगर इसके अलावा भी आप कोई और मूवी देखना चाहते हो, the translations, the explanations, Hollywood, Bollywood, Tollywood, any, you can let me know in the comment section below. And तब तक के लिए stay tuned, subscribe our channel. Thank you for watching.